everyone. So today's interaction is with Akash Chaurasia, and he got selected last year in HPCL, and presently is doing job in HPCL only. I interacted with him related to the exam, HPCL exam pattern, his gate journey, what was the gate score, what was the gate he was getting, and all. So the crux is you listen to the entire interaction, but the crux is exam may be in August. As per him, yes, this exam can be in August itself. He's telling that because of the second wave, it was postponed during his time, but this time it can be in August. So it is a June month ending now. Maybe you have 1.5, 2 more months for HPCL. So give your best. So assuming 1.5 to 2 months, give your best for this exam. And he also told that pattern is something like, you theoretical, more theoretical, some data oriented questions. It is not like gate. Maybe sometime reading textbooks help. So that we will keep on discussing. I'll provide you the detailed strategy of HPCL exam also, how we are to do it. Listen to him. He got 150, I think 3 out of 170, which after normalization was 157. And general category में out of 170 148 score was required. OBC में I think 143 पे काम चल गया था. EWS का भी something he tells, Akash tells about the scores. So that scores and everything you can see, because there is no negative marking, the score goes up. So those of you who have good preparation or not good preparation, give your 100%, because you never know what you get out of the exam. Every exam should be given with full preparation, but yes, strategy matters. You should have very really good strategy for that. So listen to this interaction with Akash, and then we will discuss in detail about the strategy for next 1.5 to 2 months. Thank you. Okay, so Akash, let me thank you. आपने टाइम दिया आपके busy HPCL job schedule से for this interaction. Thank you, sir, for giving this opportunity. Thanks to you. ओके आकाश, आप मेरे ख्याल से लास्ट ये जो पहला बैच था HPCL ने अलग से एग्जाम लिया, आप Yes, sir. उस बैच में सक्सेसफुल निकले हैं एंड प्रेजेंटली यू आर डूइंग जॉब. So Yes, sir. let's start interaction. इस interaction का the main purpose of this interaction is, the second exam has been declared now by HPCL, and many Yes, sir. students are writing this exam, and even those students who could not get very good rank in GATE, they are to write this exam. So the Yes, sir. purpose of this entire interaction will be उन students को guidance मिल जाए कि कैसे तैयारी करनी है, and something from your side will be coming जो उनके लिए beneficial हो. So I start with your brief introduction, in which please tell us about your credentials. Actually, their students are more interested in what is your CGPA or what was your GATE score, and how many times did you write GATE score, and आप किस category से belong करते हैं, आपका HPCL में कितना marks बना था. Those kind of things they are more interested. So if you can tell us that first. Okay, sir. Sir, इस 10th class से start करते हैं. Sir, I did my schooling in Ranchi itself from Lala Lajpat Rai Senior Secondary School. Okay. और सर उस समय 10 CGPA था. और सर फिर 12 भी उसी स्कूल से किया, तो उसमें 90.6% आए थे. उसके बाद सर बीटेक मेंस में उतना अच्छा रैंक आया नहीं था, तो फिर प्राइवेट कॉलेज से फिर बीटेक करना पड़ा कोलकाता में, हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. Okay. उसके बाद सर 4 साल वहाँ बीटेक किया. उस दौरान सर गेट का तैयारी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग. तो मतलब 2019 पास आउट है सर हम वहाँ के. तो गेट में तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं हो पाया था 2019 में. 2019 में आई थिंक मेरा रैंक 5500 के अराउंड था. Okay. तो फिर से सोचा गेट के लिए ड्रॉप करने का, क्योंकि मेरा सर कैंपस प्लेसमेंट से इन्फोसिस में जॉब हो गया था, लेकिन आई डिसाइडेड टू वर्क फॉर अ PSU. Okay. तो सर मैंने ड्रॉप लिया, फिर से तैयारी किया, फिर से दिया. तो उस सेकंड अटेम्प्ट में मेरा गेट का रैंक था 2000 के अराउंड. तो मतलब 2020 में. सर उस समय भी ऐसा कुछ नहीं हो पाया. PSUs के एग्जाम देते थे, मतलब जो भी प्राइवेट एग्जाम अलग से एक जो एग्जाम होते हैं ना सर PSU के. Yes. तो उस समय मेरे को उतना स्ट्रैटेजी नहीं पता था कि PSU के एग्जाम में क्या स्ट्रैटेजी है, गेट के एग्जाम का क्या स्ट्रैटेजी है. और फिर से गेट दिया 2021 में. उसमें मेरा 1200 रैंक आया. उस समय भी पता चला कि 1200 रैंक में तो मतलब एमटेक करने का सोचा नहीं था, जॉब PSU ही जाना था. तो उसमें भी सोचा अब तो कुछ होने वाला है नहीं 1200 रैंक में. फिर सर HPCL का नोटिफिकेशन आया. तो सर मतलब फेल होते होते मेरे को मतलब एक आइडिया होने लगा था कि जो PSU के एग्जाम होता है उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, फिर गेट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं. तो वो मेरे को क्लियरली डिवाइडेड दिखने लगा कि हाँ गेट के लिए ये पढ़ना है और PSU एग्जाम के लिए ये पढ़ना है. तो सर धीरे धीरे फिर जब गेट का HPCL का नोटिफिकेशन आया मार्च में, फॉर्म भरा, फिर उसके लिए तैयारी करना स्टार्ट किया. तो सर उसके लिए फिर हम क्या करने लगे ना कि मतलब
टेक्स्ट बुक पढ़ने लगे, स्टैंडर्ड बुक जो होता है। तो वो HPCL के लिए हम बेसिकली वो किए, टेक्स्ट बुक पढ़ना स्टार्ट किए उस समय। और क्योंकि गेट का तो तैयारी हम लोग कर ही रहे थे, तो न्यूमेरिकल अप्रोच तो बढ़िया था ही। और तो सर गेट में तो उतना अच्छा नहीं हो पा रहा था, लेकिन वो फायदा कर रहा था कि हाँ न्यूमेरिकल बना रहे हैं, तो फिर वो डर नहीं लगता था न्यूमेरिकल का कि चलो न्यूमेरिकल आएगा तो देख लेंगे, मतलब वो डर नहीं था, डर खत्म हो गया था न्यूमेरिकल का। तो बस थ्योरी पोर्शन पे थोड़ा ध्यान देना था मेरे को। तो सर उसके लिए मैंने टेक्स्ट बुक पढ़ना चालू किया, सारे स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ा। और सर अल्टीमेटली फिर गेट HPCL में बहुत अच्छा स्कोर आ गया था मेरा, 153 आ गया था आउट ऑफ 170। सर उससे और फिर एक मोटिवेशन मिल गया कि हाँ नंबर बढ़िया आ गया है, फिर अच्छा तो हो ही जाना है। फिर मतलब बहुत लोग दोस्त लोग बोले कि तुम्हारा नंबर बढ़िया है, तो मतलब बहुत चांसेस है। तो फिर सर फिर आपका कोर्स ज्वाइन किया था योरपीडिया पे। मैंने सर बहुत पहले ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि मतलब मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मतलब गेट नंबर तो बढ़िया आ चुका है, तो अब मौका नहीं जाना चाहिए, मतलब अब गया तो फिर दोबारा मौका नहीं आने वाला है, इस तरह का वो सिचुएशन था। तो फिर कैसे गया था आपका जीटी और इंटरव्यू कैसा गया था? सर GT नॉर्मल था, इंटरव्यू भी सर नॉर्मल था। मतलब आपने जो कराया था सर वही था। एक वो मेरे को वो आया था कि प्रायोरिटीज वाला जो होता है ना सर, हेल्थ ग्रुप में किसको प्रायोरिटी देना है, हाँ हाँ हाँ, एडल्ट को देना है कि समझ न्यू समझ। बॉर्न मदर को देना है। हाँ, सर वो बहुत आ से गया था सेक्शन कि है। उन्हीं के जो हाँ 18 एक ग्रुप टास्क होता है, 18-20 उसी में से पूछते हैं वो लोग। हाँ सर वो मेरा आ गया था, तो हम तो मतलब फिर आपका ही नाम लिए, चलो सर का भिड़ गया। अब तो बस स्टार्ट सर हम ही किए थे वहाँ पे GT, ओके। स्टार्ट अच्छा मेरा ही था। आकाश, अब ग्रुप डिस्कशन और जो इंटरव्यू है वो तो अभी बाद में आएगा स्टूडेंट्स का, पहले इसी यस पे सर। कंसंट्रेट करते हैं। आप मेरे को अपना कैटेगरी बताइए आकाश, क्या कैटेगरी कैसे है? सर मेरा OBC कैटेगरी था। ओबीसी कैटेगरी में आपको 153 था 170 में से। यस सर। तो इसमें क्या आपको बाकी कैटेगरीज का कुछ आइडिया है, किस पे कॉल आया होगा इंटरव्यू का? ओबीसी में कितने पे आ सर गया था इंटरव्यू का कॉल? OBC का सर वो 153 मेरा रॉ मार्क्स था, अच्छा उसको सर नॉर्मलाइज नॉर्मलाइज होकर वो 157.2 हो गया था। अच्छा। यस सर। तो और कितने और नंबर पे आ गया होगा ओबीसी को? सर 146 पे आ गया था। अच्छा 146 ओबीसी में आ गया था। यस सर। कुछ जर्नल का आइडिया है आपको आकाश इसमें? 148 148 जर्नल में आ गया होगा कॉल, हाँ। यस सर। अच्छा ओके। EWS में सर 144 था। ओके। अच्छा अब मेरे को ये बताओ आकाश कि पेपर कैसा था यार, जो एचपीसीएल का पेपर था वो किस तरह का पेपर था? सर एक्चुअली सर वो उसमें मतलब 170 क्वेश्चंस होते हैं, 1 1 मार्क के, हम्म है ना। और 85 क्वेश्चन सर एप्टीट्यूड रहते हैं, एप्टीट्यूड इंग्लिश रीजनिंग क्वांटी। हम्म और 85 क्वेश्चंस टेक्निकल होते हैं। हम्म और सर वो नो नेगेटिव मार्किंग होता है, हम्म तो आप सर सारा अटेम्प्ट कर सकते हैं। और सर हम्म क्वेश्चन का लेवल ज्यादा टफ नहीं होता है, बस हम्म, उसमें थोड़ा सर थोड़ा कंसंट्रेट होके, थोड़ा अगर कोई भी अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चन बनाए तो हम्म, बहुत आसानी से क्वेश्चन बनता है। अच्छा। और और सर टाइमिंग्स का ट्रबल तो नहीं आता, टाइम का ट्रबल तो नहीं आता पेपर में? 2.5 आवर्स का सर टाइम रहता है। हम्म सर एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता है, इजी होते हैं पर लेंदी होते हैं। तो हम्म उसमें क्या होता है कि हड़बड़ाहट में बहुत सारा क्वेश्चन गलती हो जाता है। जैसे हम्म सर एप्टी का वो मिरर इमेज देखना है, तो थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक वो ऊपर नीचे हुआ, क्योंकि सारा चार तो एक ही जैसा रहता है, हम्म, थोड़ा कंसंट्रेट होके अगर वो कुछ भी बनाए तो बहुत आसानी से सर हो जाएगा वो। ओके। अच्छा और इसमें आकाश जैसे जो लेवल है, डिफिकल्टी लेवल पे क्वेश्चंस का वो कैसा होता है? गेट के और सर इसमें क्या मॉडरेट। डिफरेंस रहता है? गेट का तो सर गेट में तो गेट का अलग लेवल है और इस एग्जाम का अलग लेवल है, तो गेट हम्म को तो हम लोग कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। हम्म इसमें सर एक चीज मेरे को बोलना है कि आप जितना ज्यादा टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत होते हैं, डायरेक्ट हम्म, क्वेश्चंस आपको बुक से उठा के देता है। अच्छा। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन जितना अटेम्प्ट करेंगे, हम्म, जितना आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, वो आपको इतना फायदा करने वाला है। अच्छा मतलब और जितना सर थ्योरी आप ज्यादा न्यूमेरिकल, पढ़ोगे। यस सर, और न्यूमेरिकल्स भी सर जो होते हैं वो बहुत हाई लेवल के नहीं होते हैं, मतलब 1 1 लाइन बेसिक्स 2 2 आते लाइन हैं, होते हैं। यस सर। डेटा ओरिएंटेड होते हैं एंड थ्योरी से रिलेटेड, हाँ। यस सर। डाटा थ्योरी को पूछ लेता है रिलेटेड। क्या, डायरेक्टली डाटा वगैरह पूछ लेगा? हाँ सर, डाटा वो मटेरियल साइंस में पूछ लेता है, कॉम्पोजिशन। अच्छा जैसे सर मेरे को याद है, मतलब इसका शोल्डर का पूछा था, मेरे को याद नहीं अच्छा। था। फिर घर में आके देखा तो वो बुक में डायरेक्ट मतलब वो लिखा हुआ है। तो हम्म मेरे को बहुत अफसोस हो रहा था कि पढ़ के जाना चाहिए था, 1 नंबर और हम्म आ जाता। हम्म। तो मतलब डाटा वगैरह ऐसे डायरेक्टली वो पूछ लेगा? हाँ पूछ लेते हैं सर वो। तो कौन कंपोजिशन सा पूछ सेक्शन लेते हैं। आपको डिफिकल्ट लगा था इसमें सब में? सर थोड़ा इंडस्ट्रियल का थोड़ा सेक्शन थोड़ा टफ लगा था, और नहीं बाकी तो नॉन सर टेक्निकल नॉर्मल में, था। नॉन टेक्निकल में। नॉन नॉन टेक्निकल सर, क्वांटी का क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होते हैं, थोड़ा मतलब न्यूमेरिक थोड़ा मैथमेटिकल ज्यादा होते हैं, हम्म हम्म उसमें आपको स्पीड चाहिए, स्पीड बाकी एंड ठीक होता है। एक्यूरेसी बोथ।
यस सर। इंग्लिश बहुत आसान होता है सर, इंग्लिश में वो स्पेलिंग चेक करने के लिए देते हैं और फिर थोड़ा बहुत वो फिल इन द ब्लैंक्स देंगे जो बहुत आसान लेवल का रहेगा। और फिर सर ये रीजनिंग भी अच्छा इजी रहता है, ज्यादा टफ नहीं होता है। वो मिरर इमेज आता है, क्लॉक्स आता है, कैलेंडर एक दो क्वेश्चन रहेगा। तो क्या ये चीज आपने पहले भी पढ़ी थी, या क्योंकि आप तो गेट पे कंसंट्रेट कर रहे थे, तो नॉन टेक्निकल आपने पढ़ा था इससे पहले, एग्जाम से पहले? सर एक्चुअली 2021 के बाद सर हम थोड़ा गेट पे थोड़ा अपना कम फोकस किए, क्योंकि हम तो मतलब लगा कि चलो अब न्यूमेरिकल्स तो आता है और गेट में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो सर फिर हम थोड़ा नॉन टेक की तरफ थोड़ा ध्यान दिए, जिसमें थोड़ा क्वांटिटी और रीजनिंग थोड़ा पढ़ने लगे, थोड़ा बनाने लगे। तो सर वो मेरे को बहुत फायदा किया था। और सर फॉर्चुनेटली ये हुआ था कि उस टाइम सेकंड वेव आ चुका था, तो मेरे को अच्छा खासा स्ट्रेच मिल गया था पढ़ने का। नहीं तो अगर अप्रैल में एग्जाम होता तो शायद हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि जब एग्जाम डिक्लेयर हुआ, जैसे अभी डिक्लेयर हो चुका है, तो ये कब तक हो सकता है एग्जाम? सर उस टाइम तो एक्चुअली मार्च में ये फॉर्म निकला था और अप्रैल तक डेट था, तो सेकेंड वेव आने के कारण थोड़ा वो बहुत डिले हो गया था। हाँ। तो सर अगस्त में हमारा एग्जाम हुआ था, 12 अगस्त को एग्जाम हुआ था। हम्म। तो सर इस बार भी हमको लग रहा है उसी वही रूटीन फॉलो होने वाला है। मतलब जुलाई अगस्त में हमको लगता है एग्जाम होगा। अच्छा, हाँ अगस्त में हो अगस्त में। जाएगा। जी सर, अगस्त में हो जाएगा। अच्छा, उस टाइम पे भी मार्च वगैरह में डिक्लेयर हुआ था? हाँ लेकिन सर वो सेकेंड वेव के कारण वो थोड़ा डिले हो गया था। डिले हो गया था। पर इस बार तो हमको मतलब लगता ज्यादा है कि टाइम बच्चों मोस्ट। को नहीं मिलेगा, 1.5-2 महीना और मिलेगा। हाँ मोस्ट प्रोबेबली सर। हम्म, सही है। अच्छा आकाश, अभी आप प्रेजेंटली एचपीसीएल में जॉब कर रहे हैं, राइट? यस सर। कहाँ पे पोस्टेड हैं अभी आप? सर अभी हम सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में। अच्छा, महाराष्ट्र में आपका पोस्टेड है। यस सर। तो ये जो स्टूडेंट अभी ज्वाइन करना चाहते हैं एचपीसीएल में, तो उनको कुछ ये जो अगले 2-1 मंथ बचे हैं, खासकर ऐसा बहुत सा बच्चा जिसका लेवल, अब आपका लेवल अच्छा था तैयारी का, आपका यस सर। गेट का लेवल भी अच्छा था और आप पढ़ भी चुके थे। हर बच्चे का लेवल वैसा नहीं है आकाश। हर नहीं बच्चा सर। तो, कई तो ऐसा भी है जिसने अभी भी स्टार्ट किया है। यस तो सर। उस बच्चे के लिए क्या मोटिवेशन है, वो किस माइंडसेट से तैयारी करे? क्योंकि मेरे को लगता है एग्जाम्स निकालना ना एक लार्जली आपका मेंटल सेट होता है कि मोटिवेशन के साथ आप भिड़ जाएं। अगर आपने यस सर। पहले ही मान लिया मेरा नहीं हो सकता भाई साहब, और यहाँ तो आकाश जैसे बच्चे तैयारी करके बैठे हैं, मेरा नहीं होगा, तो वैसे ही नहीं होगा। तो ऐसे बच्चों को क्या आप मोटिवेशन दे सकते हैं, क्या बता सकते हैं उनको? सर ज्यादा नहीं पढ़ना है, मतलब ज्यादा हाई लेवल का नहीं पढ़ना है, थोड़ा कम ही पढ़ना है। सर हाँ एक्चुअली बच्चे लोग क्या होता है ना, ज्यादा हाई लेवल पढ़ लेते हैं और लो लेवल का सवाल छूट जाता है। हाँ हाँ। और एचपीसीएल में वो ज्यादा हाई लेवल का सवाल आने वाला है नहीं। हम्म वो आपसे नॉर्मली पूछेंगे, बस थोड़ा जो भी आप थ्योरेटिकली पढ़ेंगे थोड़ा ध्यान से पढ़े। हम्म जितना आप टेक्स्ट बुक पढ़ सके उतना बढ़िया बात है। अभी क्या है कि बच्चा ना 2-3 एग्जाम में भिड़ा हुआ है, गेट की भी यस तैयारी सर। कर ही रहा है, वहां पे एयरपोर्ट हाँ। अथॉरिटी भी आ गया है, अब एचपीसीएल भी आ गया है, वहाँ डीआरडीओ ने भी डिक्लेयर किया है, अभी 4-5 एग्जाम आ गए जिनमें सब में रिक्वायरमेंट अलग अलग है। यस क्या सर। ये बच्चों को क्या बोला जा सकता है कि भाई गेट का भी वेट कर लो चाहे अगस्त तक, उसके बाद अगस्त के बाद गेट में पूरी तरह भिड़ जाना, और अभी 100% अगर एचपीसीएल में इंटरेस्टेड हो तो एचपीसीएल वगैरह की तरफ भिड़ जाओ उसकी तरफ? क्या ऐसा बोला जा सकता है? सर एक्चुअली होता है ना, जैसे जो एक बार आप अच्छा से पढ़ लिए, जैसे न्यूमेरिकल आप बनाए एक बार अच्छा से, तो वो आप भूलेंगे नहीं। हाँ तो जैसे बहुत लोगों को डाउट होता है कि नहीं भूल जाएंगे, वो सर एक बार अगर वो दिमाग में अच्छा से चला जाता है ना तो वो रिटेन रह जाता है। हाँ। तो एक बार अगर आप कोई न्यूमेरिकल बनाए हैं तो वो खुद ब खुद वो एग्जाम में स्ट्राइक कर जाता है। अच्छा। ये सर ऐसे भी मेरे को भी लगता था कि अरे नहीं पढ़े, पर वो जब इस तरह का क्वेश्चन आता था एग्जाम में, वो खुद ब खुद स्ट्राइक कर जाता था और फिर वो बन भी जाता था। अच्छा। तो सर एग्जाम्स के अकॉर्डिंग थोड़ा हमको स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। जो एग्जाम्स मेरा पहले है, अच्छा। जैसे एचपीसीएल का है, तो अगर हम अभी टेक्स्ट बुक पढ़ना चालू करेंगे तो डेली कुछ ना कुछ 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 चैप्टर हम लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ा हुआ तो पहले से है, ज्यादा टाइम लगना नहीं है। बस सही है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप मार्क करते हुए आप उसको 2-3 बार पढ़ सकते हैं। 2-3 बार करते जाओ। यस सर। चलो, दैट इज गुड आकाश। अब ये इंटरेक्शन का, आई एम वेरी श्योर, जो आपने बातें बताई हैं ये स्टूडेंट सुनेंगे और फॉलो भी करेंगे। और यस सर। 12-15 घंटे तैयारी कर लें स्टूडेंट्स, 12-15 घंटे बैठ जाएं। जो एग्जाम्स बहुत ही कम टाइम में आते हैं उनमें एक अच्छी बात ये होती है कि आप 100 मीटर रेस की तरह दौड़ सकते हैं उसमें, कि यस मतलब सर। आप बहुत स्टेमिना रख के अपना दौड़ें और उसको कन्वर्ट करने की तैयारी करें। और हो भी जाता है, मतलब अगर मेहनत करके करेंगे तो हो जाएगा। तो अभी ज्यादा ना सोचें कि होगा नहीं होगा, अभी भिड़ जाना चाहिए। राइट आकाश? यस सर। सर और एक बात है कि जैसे एग्जाम में आप जितना पुशअप करेंगे बाद में हाँ जी। आपको उतना कम मेहनत करने का जरूरत है। मतलब सही अगर है। एग्जाम में ही आपका अच्छा स्कोर आ गया है
हाँ इंटरव्यू और जीटी तो करना ही है, पर वो आप थोड़ा रिलैक्स होके कीजिएगा तो वो परफॉर्मेंस होने का चांसेस ज्यादा कॉन्फिडेंस होता रहता है फिर कि साहब मेरा रिटर्न में अच्छा है। अदरवाइज बच्चा जो रिटर्न में कम नंबर लेके अंदर जाता है उसको है। हाँ सर, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है अपना हाँ आगे, सर, कि मेरे को नहीं हो पाएगा शायद, वो चीज है। ये सर ऐसा हम बहुत लोग से सुने हैं कि जिनका नंबर कम आता है वो जाने से पहले ही वो कंप्लेन करते हैं कि नहीं, अरे नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, हाँ हाँ, मेरा अरे कम वो नंबर तैयारी भी आएगा। नहीं करते हैं, कई बच्चे शुरू में कॉल करते हैं, बोलते हैं सर तैयारी करूं क्या ना करूं, इंटरव्यू देने जाए कि ना जाए, तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है ना बच्चों का, दैट वो सर बात मेरे सही है। मेरे मेरे पैनल में सर 2-3 लड़के ऐसे थे ना, मतलब जिनको पता भी नहीं कैसे बैठना है जीटी में। हम्म। हाँ, वो वो कान बिल्कुल पे ऐसे उन्होंने हाथ तैयारी रखे नहीं हुए हैं, मतलब हम की। उन्होंने जरा भी तैयारी नहीं की नहीं थी। चलो हम फिर इंटरव्यू जब जीटी हो गया ना, फिर हम उनसे पूछे कि मतलब कभी देखा नहीं क्या जीटी, तो बोला नहीं, कभी देखे ही नहीं। तो फिर सर हम आपका चैनल के बारे में उनको बताएं कि ये पीडीएफ में देखना करना, हम उसी से किए थे। हाँ। तो सर बोला ठीक है देखते हैं। चलो सही है। तो सर मेरे ठीक को है, एक्चुअली बहुत खराब लग रहा था कि वो इतना अच्छा परफॉर्म करके 150 वहां तक मार्क्स पहुंचे हैं। लेके वो रिजेक्ट हो गया फर्स्ट स्टेज में ही। सही है। यस सर। और फिर उसके उसके चलते फिर 1 साल 2 साल पता नहीं कितना और वेट करना पड़ जाएगा, तो सारी और प्रोसेस सर वो गलत है। लड़का फिर मेरे को फोन किया, हम्म। अभी जो सर नोटिफिकेशन आया ना जीटी के लिए, हम्म। वो फिर मेरे को फोन किया कि कैसे तैयारी करे, फिर हम उनको बताएं कि योगपीडिया ज्वाइन कर ले, सही ओके। रहेगा। चलो सही है। चलो आकाश, थैंक्स अलॉट, आपने ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया स्टूडेंट्स को, एंड आई एम वेरी श्योर उनको बेनिफिट होगा। एंड एक बार बच्चों का रिटर्न आ जाए, क्लियर हो जाए, तो मैं आपको फिर से बॉदर करूंगा कि जीटी वगैरह और इंटरव्यू जो होता है उसके बारे में आपसे फिर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, राइट आकाश? हाँ डेफिनेटली सर। थैंक और यू आकाश। सर आपने जो बताया था ना कि वो जैसे ग्रुप टास्क तो हम लोग 8-10 ही करते हैं आपके साथ, हाँ जी। लेकिन जो पैनल पे पड़ा हुआ है हाँ। वो सर मैंने मतलब 150 जीटी लगा लिया था आपका, अच्छा। 150-170 जीटी लगा लिया था। सर हम्म। वो मेरे को मतलब बहुत हेल्प किया था। तो हम्म। अगर आपका जो डायरेक्शन पे जो आप जो देते हैं, अगर वो भी कुछ कुछ बच्चे अगर वो सुनने लगे तो उससे भी बहुत हेल्प होता है। मतलब तैयारी तो करनी चाहिए, बात नटशल में यस ये है सर। कि बिना तैयारी के मत जाओ, यस सर। और इसी तरीके से जाओ एग्जाम में, जैसे आपका रिटर्न भी अच्छा हुआ था, लेकिन उसका मतलब ये यस नहीं कि तैयारी करना छोड़ देंगे, और आपका वो तैयारी तो करके जाना चाहिए, एटीट्यूड ऐसा यस रखो सर। कि तैयारी भाई सब करनी है हमें, वो जरूरी है, राइट आकाश? ओके, थैंक यू आकाश।